स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज, as you can see on the screen, okay? And then my introduction, so you guys know me. I am your chemistry educator, Kirti Sharma, and I am your chemistry mentor, right? And I have like ditched a plan. What is that? Since you know that we were planning a crash course from 10th of May, right? Instead of that, मुझे लगा कि यार जब टाइम है तो 10th of May तक वेट क्यों करना है. सो वॉट वी आर गोना डू इज़ हम एक चैप्टर को उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. पर्टिकुलरली वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक. तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो दिस टॉपिक बाय कीर्ति मैम एंड देन यू विल लाइक प्रॉबेबली फाइंड मी. Okay, since this is the start, agar like right now we are getting started with chapter number 1 of class 11, that is some basic concepts of chemistry. Okay, so you know this कि यार वो chapter बहुत like easy उसमें शुरू होता है, like what is chemistry. If I tell you then it is simply like अपने पास matter है, right? कोई भी आप कह सकते हो पदार्थ है, correct? उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, वो कैसे बना है, उसके क्या रिएक्शंस हैं, राइट? वो किन किन प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट? उस पर्टिकुलर मैटर का. दिस इज सिंपली योर केमिस्ट्री, राइट? Then the part comes in where we get to know about the importance of chemistry. So everything that we see around us, let it be any cosmetic, let it be any perfume, let it be any like say vinegars, let it be your cement, polythene, PVC या फिर सीमेंट या फिर यू नो जितने भी चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं such as pesticides, insecticides, fertilizers, these are all chemical compounds, right? So you can see that everything which is around you is nothing but chemistry. So that is why like you know chemistry is definitely important for us. इसके आगे आ रही चैप्टर some basic concepts of chemistry में जो मेन पार्ट शुरू होता है दैट इज पार्ट नंबर ए विच इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट? यहाँ पे हम लोग यार 5 लॉज डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? जो कि प्रीवियस ईयर नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, राइट? टॉपिक वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. सो यार ऐसा देखा गया, केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया गया और आप कह सकते हो कि देखा गया कि यार ये वाला जो रिएक्शन है ना वो कुछ ऐसा सा रूल फॉलो कर रहे हैं ये रिएक्शंस. तो उन रूल्स को वी नोटेड डाउन and that's how we are studying it. Okay, as simple as that. So the first law which comes into the picture, it is law of conservation of mass. What is that? It is simply law of conservation of mass. Okay, so you have been studying this particular law from your childhood, which says that mass can neither be created nor be destroyed, right? Simply ये explanation होती है law of conservation of mass की. बेसिकली जितना भी मास इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे यू नो पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं कर सकते हो, आप उसको ऑब्टेन भी नहीं कर सकते हो. ओके, ऑल्दो one form of matter can be transformed into different forms of matter, right? That we know. वो बहुत बच्चों वाले एग्जाम्पल है कि ice can be converted into water, water can be converted into water vapors, right? But the water को मतलब बेसिकली आप ख़त्म नहीं कर सकते हो. That's the matter. चाहे वो solid state में है, चाहे वो liquid state में है, चाहे वो gaseous state में है, right? This is the basic like point of this chapter. यहाँ पे देख लेते हैं exactly क्या statement लिखी हुई है. It was proposed by Lavoisier uncle and it was verified by Landolt Chachu. Okay,
So that's what we know. You can just remember these कि yes, ये law इन uncle ने दिया था. Okay. So yeah, according to this law, matter can neither be created nor destroyed in the course of a chemical reaction, though it may be changed from one form to another, right? The total mass of materials after a chemical reaction is same as the total mass before the reaction. Okay, so basically if I tell you, let's move ahead, let me tell you, what can I say, right? What can I say? If I give you a chemical reaction which says that A plus B, A और B यार आपके reactants हैं जो आपको C plus D दे रहे हैं, ठीक है, they are giving you C plus D products दे रहे हैं, as simple as that. तो आप क्या बोलोगे यार? Total mass of reactants, what can you say? You can say that total mass of reactants is equal to total mass of products, ठीक है? That's what you can say. Total mass of reactant will be equal to total mass of the product. Suppose initially मेरे पास x ग्राम थे A के, y ग्राम्स थे B के, and suppose कुछ p ग्राम्स बने C के और q grams बने D के. So what can you say from this particular reaction? You can say that x plus y, right? X plus y grams. According to the law of conservation of mass, this x plus y has to be equal to this p plus q grams. Okay, as simple as that. ठीक है, बहुत easy है. That's how you can just simply, verify the law of mass action. Okay, as simple as that. If I particularly talk about the exceptions of this law, let's talk about exceptions of this law. Okay, so exception is beta nuclear reactions. What is the exception of this particular law? It is nuclear reactions. That is nuclear reactions. Okay, why? न्यूक्लियर रिएक्शंस में यार क्या होता है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व्ड होती है. आप क्या बोलते हो? यू से दैट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस मास प्लस energy is conserved, right? Mass plus energy is conserved. Okay, that's what you can say. और यही एक मॉडिफाइड वर्जन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का. ओके, कि यार जो मास और एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. कि मास और एनर्जी कैसे होते हैं बच्चे? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज वेल, वी नो दैट E इज इक्वल टू mc². करेक्ट, ये बात भी हमको आइंस्टीन अंकल ने बता के भेजी है. सही है. सो यार दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, आई बिलीव इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेसिकली यार क्या होएगा. अच्छा, एक और चीज़, मुझे एक और चीज़ क्या याद आई है, ये जो रिलेशनशिप है इट इज़ ओनली वैलिड जब आपका जो रिएक्शन है इट कंप्लीट्स 100%. व्हेन द रिएक्शन कंप्लीट्स 100%, जब आपका रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि सारे रिएक्टेंट्स, सभी के सभी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं. दैट्स व्हाट इज मेंट बाय दिस थिंग, राइट? बट अगर आपका रिएक्शन, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, ओके, प्लीज नोट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ नोट. ओके, लेट्स नोट इट डाउन in terms of a note. What is that? In case of an incomplete reaction, में जो ये वाला relationship है, it becomes the total mass of reactants will be equal to, आप क्या बोलोगे? You will say that
mass of reactants, total mass of reactants will be equal to total mass of products. Of course, अब बोलोगे मैम इसमें नया क्या है, अभी आएगा नया, total mass of products प्लस इसके साथ साथ क्या, क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ही नहीं है, तभी तो वो इनकम्प्लीट रिएक्शन मैंने कहा है, राइट. सो इट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. आप क्या बोलोगे, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट को भी आप कैलकुलेट करोगे, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, ठीक है ना. So here we are done with the law of conservation of mass. आगे चलते हैं. Let me see something. It's been 11 minutes till now. Okay, cool. So I believe that this thing is clear. Let me see how the board is looking. And if you want to take a screenshot, of course you can. Okay. Okay, cool. Let's move ahead then. That is law of constant proportions, constant और definite proportions of course. इसको आप law of constant proportions भी कहते हो, इसको आप law of definite proportions भी कहते हो. तो यार इसका जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि no matter आपने किसी कंपाउंड को कहाँ से उठाया है, ठीक है, किसी कंपाउंड को आपने किस सोर्स से ऑब्टेन किया है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. बेसिक मुद्दा ये है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू अबाउट वाटर, ठीक है, चाहे मेरे पास जो मेरी वाटर बॉटल है, चाहे तो मैंने ये पानी टैप से लिया है, चाहे ये पॉन्ड से लिया है, चाहे ये रिवर से लिया है, इसका फॉर्मूला H2O ही रहना है, राइट. इसका फॉर्मूला H2O ही रहना है. इन द सेंस मैं क्या कह सकती हूँ यार, कि इसमें हमेशा 2 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे एक मॉलिक्यूल में और एक एटम ऑक्सीजन का होगा. या फिर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी मॉडिफाई कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास 18 ग्राम्स वाटर है, ओके, इफ आई हैव 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, देन इन दैट केस out of that 18 grams 16 gram will be oxygen and 2 grams will be hydrogen. So this ratio has to be constant always and it is independent of the source where the compound is obtained from. Okay, so बड़ी simple सी law है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, very easy to understand. Let's see, मतलब source या फिर अगर आप किसी और केमिकल कंपाउंड की बात करो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने वो कोल को बर्न करके प्रोड्यूस की है कार्बन डाइऑक्साइड, या आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करके ऑब्टेन किया कार्बन डाइऑक्साइड. It doesn't really matter. What matters is that we have carbon dioxide, right? और उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहना है, जिसमें एक एटम कार्बन का होगा और 2 एटम ऑक्सीजन के होंगे. As simple as that. Okay? इससे ज़्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा. Okay? So let's look at the definition. So it was proposed by Proust-Dunkel. According to this law, a pure chemical compound always contains the same elements combined together in the fixed ratio of their weights. जिसे हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास 18 ग्राम्स वाटर है तो उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा. As simple as that. Okay? So yeah, together in the fixed ratio of the weights, whatever its method of preparation may be. So इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि आपने किस तरीके से उसको ऑब्टेन किया है. एज सिंपल एज दैट. रेशियो आप सिंपली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. करेक्ट है. चलो वेट्स की रेशियो निकालनी है, जैसे अभी हमने वाटर के केस में 16:2 निकाला. ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. नाउ दिस इज समथिंग जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है. और क्यों होता है पता नहीं,
लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसकी मैं यार तुमको स्टेटमेंट बाद में समझाऊंगी, मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना ज़्यादा पसंद करूँगी, ओके। लेट्स मूव अहेड। सो हियर यू कैन सी दिस इज अगेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 ऑक्साइड्स लिए नाइट्रोजन के, ठीक है। देयर आर यू कैन सी 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन द स्क्रीन। नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, ठीक है, राइट। कोई तकलीफ नहीं है। अभी देखो जो इसमें समझने वाली बात है यार वो क्या है कि हर एक कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड्स, राइट। तो ये कंपाउंड्स हर बार अलग क्यों बन रहे हैं? सो सबसे पहली बात, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन यू टॉक अबाउट कि जब दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तब क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, हर एक ऑक्साइड में मैं पहले आपसे पूछूंगी व्हाट इज़ द वेट ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद हम इनमें से किसी एक का भी वेट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। इनमें से हम किसी एक के वेट को फिक्स कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन, ठीक है। हम नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर देंगे। लेट्स सी हाउ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, राइट। यहाँ पे कितने ग्राम्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है बच्चे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका एटॉमिक मास होता है 14, सिर्फ N का, ओके। सिंस यहाँ पे दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, सो आई विल से हियर द नाइट्रोजन प्रेजेंट इज 28 ग्राम्स, राइट। इट इज़ 28 ग्राम्स। ऑक्सीजन की अगर बात करें सो ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स, करेक्ट। NO की बात करते हैं यार, NO की बात करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी प्रेजेंट है? 14, ऑक्सीजन अगेन 16। आगे चलते हैं, N2O3, नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है यार? 28। यहाँ पे भी नाइट्रोजन N2, राइट। सो यहाँ पे भी 28 ग्राम्स है और यहाँ पे भी 28 ग्राम्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन O3, 16 into 3 is 48, right? So yeah, it's 48. 16 into 4, it's 64. And 16 into 5, it would be 80, right? Correct. मैंने कहा था कि हम नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर देंगे। सो अगर मुझे यार नाइट्रोजन के वेट को फिक्स करना है, व्हाट कैन आई डू? बाकी हर जगह 28 है एक्सेप्ट द सेकेंड वन। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी। सो इट बिकम्स 28, ओके, एंड इट बिकम्स 32, ठीक है। इट बिकम्स 32। आई बिलीव इसमें कोई डाउट नहीं, करेक्ट। अब इसको यार आप कैसे समझ सकते हो? आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू हैव 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी। अगर 28 ग्राम्स ऑक्सीजन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। अगर 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाएगी। सिमिलरली अगर 64 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ करेगी तो टेट्राऑक्साइड बनाएगी, और 80 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ करेगी तो पेंटॉक्साइड बनाएगा। तो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये भी डिपेंड करता है कि यार वो किस रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। सही बात है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अभी चलो इसका अगर आप रेशियो देखो, सो हियर द रेशियो विल बी 28, लेट मी write it a bit here with a different color, yeah, so it would be 28:16, right? It would be 28:16। यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन के वेट की, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 28:16,
यहाँ पे आ जाएगा 28:32, यहाँ पे आ जाएगा 28:48, 28 sorry, let's write it properly. It is 28:64 and it is 28:80, right? जिसको आप further कट करके कैसे लिख सकते हो? You can say that it is 14:8. 14:8. Let's write it properly. Sorry guys. It is 14:8, right? Similarly यार, take a moment और ये सारे ratios ना खुद से लिखो, ठीक है? 14:8, 14:16, 14:24, right? This would be 14:24, 14:32, and this would be 14:40, right? That would be 14:40. करेक्ट है गाइस? इसमें कोई परेशानी नहीं है. तो अब अगर आप ऑक्सीजन की रेशियो देखो, एक कंबाइंड वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ अगर आप ऑक्सीजन की रेशियो देखो, तो यार ऑक्सीजन की क्या रेशियो निकल के आ रही है? So it is coming out to be 8:16:24:32:40, right? That is 1:2:3:4:5, right? This is 1:2:3:4:5, right? अगर आप एक फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रेशियो देखते हो, then it comes out to be 1:2:3:4:5. This is simply your law of multiple proportions. Let me show you the statement now. So according to this law, when two elements A and B combine to form more than one chemical compound, of course हमने 5 chemical compounds बनाए थे using only on nitrogen and oxygen, right? So where were we? When two elements combine to form, when two elements A and B combine to form more than one chemical compounds, then different weights of A, हमने लिए थे different weights of oxygen which combine with the fixed weight of B, which combine with the fixed weight of nitrogen, are in proportion of simple whole numbers, right? थे ना वो simple whole number के ratio में. So that's how you say it is law of multiple proportions. Simple. आगे चलते हैं. अब बहुत easy सी चीज़ें रह गई हैं. Now we have is Avogadro's hypothesis. Next क्या है? Avogadro's hypothesis. इसके बाद एक और है हमारे पास, that is Gay-Lussac's law, right? That is Gay-Lussac's law. So here we have Avogadro's hypothesis. तो इन्होंने क्या बोला? Suppose इन्होंने क्या बोला? Let me draw the containers here, okay? चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. Suppose that I have 3 containers, okay? I have 3 gases inside, ठीक है? 3 gases हैं, उसमें 3 different वो हैं. 3 containers हैं, उसमें 3 different gases हैं. This is say gas number A, gas number B and gas number C, okay? मैंने आपसे बोला कि तीनों ही गैसेस, ओके, तीनों ही गैसेस का प्रेशर P है, ठीक है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है, तीनों का, ओके. तो ऐसे में एवोगाड्रो अंकल ने कहा कि इफ़ दिस इज़ द केस, ओके, इफ दिस इज़ द केस कि आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं जो सेम सेम उनकी वॉल्यूम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे वो भी सेम होंगे तीनों गैसेस में. तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? दैट n इज ऑल्सो फिक्स्ड, ओके, n इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है ना. और आपको यार नीट के स्टूडेंट्स हो, एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन जो आपको याद ही होगी, that is PV is equal to nRT, right?
PV इज इक्वल टू nRT। तो यहीं से देख लो यार, हर गैस का प्रेशर फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स n वो भी तो सेम ही होंगे। सो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, दैट n इज ऑल्सो फिक्स्ड। Simple, easy, okay? This law is sometimes like asked in the form of like numericals as well, okay? So yeah, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. Avogadro hypothesis has been found to explain as follows. You can see the things here, okay? I believe यार इसमें कोई doubt नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने एक और बात क्या बताई थी एवोगैड्रो अंकल ने, कि एट एस टी पी 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर्स, जिसको आप मोलर वॉल्यूम भी बोलते हो, राइट। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 liters, right? It occupies 22.4 liters, which is also called as molar volume. इसको आप molar volume भी बोलते हो, it is also called as molar volume, ठीक है ना। I believe इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के ही अंदर हमारे पास कुछ डेंसिटी रिलेटेड वाली चीज़ें भी होती हैं जो हमको करनी होती हैं। लेट्स डू देम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, लेट्स डू देम, द डेंसिटी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। where were we? Okay, so yeah, here you can see about, we were doing Avogadro's hypothesis, right? Here it is, correct. तो यार अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी सिंपली मास ओवर वॉल्यूम, करेक्ट है। अगर आप वेपर डेंसिटी की बात करते हो, आई एम नॉट डाइविंग डीप इनटू द डेरिवेशंस, सो हियर यू कैन सी कि अगर आपको किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करना है, then this relationship comes up, that molecular mass is equal to 2 times vapor density, and this is also important, okay, this relationship also is important, okay. Let's move ahead. Last law of the day, that is Gay-Lussac's law. It is simply Gay-Lussac's law. It was proposed by, of course, Gay-Lussac uncle, and it is only applicable for gases. Make sure कि जब आपका पूरा रिएक्शन, राइट, गैशियस फेज में हो रहा होता है, दैट रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, everything is present in the gaseous form. Let me see how much time it's been. 28 minutes, okay. So according to this law, when gases combine, they do so in volumes which bear a simple ratio to each other and also to the product form, provided all the gases are measured under similar conditions. The Gay-Lussac's law is based on experimental observation. So it is similar, it is simply, suppose your reaction is this, H2 gaseous प्लस Cl2 गैशियस, मतलब आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक गैस दे रहे हैं, ठीक है, 2HCl गैशियस. So here you can see that everything is present in the gaseous phase. This is something which is extremely important for you, okay. Let me have some water, please. Right, here is my pen. All right. So here you can see that all the like reactants as well as products, they are present in the gaseous phase. So here of course the Gay-Lussac's law is valid. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन इज टू HCl का रेशियो बताओ कि वो उनका वॉल्यूम का रेशियो किस रेशियो ऑफ वॉल्यूम में वो रिएक्ट करते हैं, तो इट इज सिंपली इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट वुड कम आउट टू बी
1:1:2. As simple as that. Very easy law, extremely easy law. Okay, so yes, they bear a simple whole number ratio. याद रखने वाली बात क्या है कि it is only valid for gaseous reactions. Okay, it is only valid for gaseous reactions. Just give me a moment, I need to check something. Okay. Right, correct. Okay, as you can see here that it is written that the Gay-Lussac's law was based on totally experimental observations. So here is a very important note for you. Okay, here is a very important note for you, and that is that this is the only law of chemical combinations which cannot be proved by Dalton's law, Dalton's atomic theory. Okay, it can not be proved by, cannot be proved by Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. All right, it cannot be proved by Dalton's atomic theory. अभी हम लोग करते हैं यार कुछ previous year NEET questions. Okay, so here you can see that equal masses of hydrogen and oxygen and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical conditions. Okay, सब कुछ same condition में है. The ratio of the volumes of gases H2:O2:methane is going to be what? तो यार आपको पता है कि लाइक यहाँ पे कौन सी लॉ लग रही है सबसे पहले? बताओ. यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे लग रही है यार एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. दिस इज़ अ हिंट फॉर यू. ठीक है, दिस इज़ अ हिंट फॉर यू. यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. How equal volumes of all the gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure conditions, right? According to this law, चाहे आप वॉल्यूम को मेजर करो, चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को मेजर करो, राइट? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी इक्वल, राइट? सो देखो यहाँ पे हमको रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स बताना है, तो हम रेशियो ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. हाउ डू वी डू दैट? ठीक है, अगर हम बात करें यार नंबर ऑफ मोल्स, आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई बिलीव दैट यू गाइज नो दिस. इट इज़ गिवन मास, कि आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसका मास क्या है? गिवन मास ओवर मोलर मास. दिस इज द ईजीएस्ट वे of calculating the number of moles. Okay, now suppose कि देखो हर किसी का equal masses, right? Suppose that mass is W. Okay, molar mass of hydrogen कितना होता है बेटा? 2 होता है, correct? is 2. ऑक्सीजन equal mass है W. molar mass कितना होता है बच्चे ऑक्सीजन का? it's 32, right? it's 32 is 2. मास सेम है ओवर मीथेन. मीथेन का कितना होता है यार? CH3, राइट? 12 फॉर CH4, राइट? 12 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर हाइड्रोजन. सो इट्स कम्स आउट टू बी 16. सो दिस इज द रेशियो. अब ये होता है यार आपका काम कि इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लो. W/2 ओवर W/32. 16:1:2, राइट? दैट वुड बी द आंसर. और आप इसको लिख सकते हो 16:1:2, राइट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इजी. आगे चलते हैं. What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely
1 liter of propane gas measured under the same conditions. Okay, so propane is C3H8, right? What is propane? Propane is C3H8. आप किसी चीज़ को बर्न करते हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, और हमेशा यार क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो यू विल से इट्स CO2 प्लस H2O. ओके, इट्स CO2 प्लस H2O. तो सबसे पहले तो यार बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है. अगर आप सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, इधर 3 है इधर 1 है, तो कार्बन बैलेंस हो गई, ठीक है. हाइड्रोजन बैलेंस करें, इधर 8 है इधर 2 है, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है. बचा क्या, ऑक्सीजन बचा. यहाँ पे कितने हैं, 6 एंड 10 ऑक्सीजन है इन टोटल, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है. सही है, इक्वेशन हो गई बैलेंस. सो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस. सो यार दिख ही रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 प्रोपेन को 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा. सो अगर 1 लीटर प्रोपेन गैस है तो उसके साथ हमको 5 लीटर ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू बर्न इट कंप्लीटली, राइट, फॉर द कंप्लीट रिएक्शन. 5 लीटर्स, इजी. तो बहुत इजी यार ये क्वेश्चन था, बड़े प्यार से ये रिएक्शन लिखा, 1 5 सॉल्ट. ओके, नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ oxygen gas and SO2 are 32 and 64 respectively. We know this. At 15 degrees Celsius and 150 millimeter Hg pressure, 1 liter of O2 contains n molecules. 1 लीटर, right, 1 लीटर O2 के पास n molecules हैं, n molecules हैं. तो हमसे पूछा गया है the number of molecules in 2 liters of SO2 under the same conditions of temperature and pressure. यार फिर से एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लग रहा है कि like equal volumes of all the gases contain equal number of molecules at similar conditions of temperature and pressure, right? So pressure temperature conditions similar हैं, equal volumes. 1 लीटर चाहे SO2 हो चाहे O2 हो, दोनों के पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. चाहे मैं 2 लीटर O2 के लूँ चाहे SO2 के लूँ, उसके पास कितने होंगे बेटा, 2n मॉलिक्यूल्स होंगे. इजी इजी, किसी कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. सो इट इज सिंपली n/2 n 2n 4n. 2n इज द राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, what weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 kg of ethylene. Similar type का क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है. सो इथाइलिन यार होता है C2H4, है ना, C2H4 करेक्ट है. ये मैं रिएक्शन लिख रही हूँ आपके लिए. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, C2O4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, अगेन CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड. बैलेंस करना मत भूलना इक्वेशन को. सो व्हेन यू विल बी बैलेंसिंग द इक्वेशन, इधर 1 कार्बन है इधर 2 कार्बन है इधर 1 है, ये बैलेंस कर दिया. इधर 4 हाइड्रोजन है उधर 2 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस कर दिया. इधर 2 4 6 ऑक्सीजन है इधर 2 है, हो गया बैलेंस, बैलेंस्ड. सो अभी मुझे बताओ कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन. तो सबसे पहली बात तो यार इसको 1-2 ग्राम्स में रखना है, ठीक है ना. ये है 2.8 kg, तो बताओ इसके साथ कितना O2 रिक्वायर्ड होगा. नंबर ऑफ मोल्स से इसको यार रिलेट कर देना, गिवन मास ओवर मोलर मास. आपको हिंट दे दिए. दिस इज नाउ योर होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज द राइट आंसर. सो यस, वी आर डन फॉर द डे and thank you for attending the lecture. I hope you liked it. Now we'll move on to the next concept जो कि आपको जल्दी से मिल जाएगा. Till then, bye bye and take care. Bye बच्चा पार्टी.